Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to HPCL written exam for mechanical engineering paper, and the topic is related to construction practice, planning and project management. इसमें we have already done the topic which are on YouTube now, that is land acquisition, land safety and welfare. This we have already done. Today's topic is about construction planning equipment. They are largely theoretical topic, but उसमें concept involved हैं. जब तक आपको understanding नहीं होगा, you will not be in position to solve the question. So there is concept involved, there is understanding involved in this. So try to understand the topic. और ये जो document बन रहा है, इस document को बहुत अच्छे तरीके से आप go through करना. Some questions are also there in this, but document is very important. So we start, friends. What is construction planning and equipment? It is related to this topic, actually is from civil engineering domain, but because you are joining HPCL, so many of the projects are common. So whenever you have to do some project for which you need to have a site, you need to select a site, you need to make construction and you need to use some equipment, ये topic उससे related है. तो जब भी आप कोई construction project लगाते हैं, whenever you are planning for some construction project, what are the steps involved, how it is to be done, what are various terminologies, what are the various equipments which you may use, तो उससे related ये topic है. Let's try to understand basics of this topic now. So construction planning, what do we understand by this process? Construction planning is obviously any planning process involves the organization and coordination of various activities so that I complete construction project. So entire detailed plan is to be made, in which sequence of the work, time required, resource and cost will be mentioned. So construction management, जैसे project management होता है, construction planning को basically construction management की तरह से तुम इसको समझ सकते हो. Construction planning, word is planning, but it is more or less a management. And जब आप management की बात करते हो तो you talk about the organization and coordination of what, of various activities and resource. जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, whenever you have to do any project, resources are used. Which resources? MMMM, manpower, human resource, material, machines, money. These are some resource which you have to use to complete some project. And project का अपना एक objective होगा. There will be one goal, objective of the project, and you have to complete it. And there will be so many activities. So construction planning actually is a construction management process in which you make use of all these things, all these activities for this. So आपको एक डिटेल प्लान बनानी है और वो प्लान आपका सीक्वेंस ऑफ टास्क, टाइमलाइन, रिसोर्सेज एंड कॉस्ट, इन सब की बात करेगा. तो जब आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, देन यू हैव टू talk about okay which are the activities involved, what will be the sequence, what will be the timetable, what will be the cost involved, वो सारे के सारा आप उसमें प्लानिंग करोगे. So this is basically management activity and execution related activity, and what technology you will be using, that is the reason the topic is construction planning equipment and all. what technology आप use करोगे, work task को कैसे define करोगे, resources को define करोगे, duration कितना होगा वो define करोगे. So this all will be taken care of in this particular construction planning. And what is the definition of good plan? It is basically developing the making the budget and making the schedule for the work. So it is a very important basically task in construction, making of the construction project. So before the moment you think of construction project कि मेरे को construction project को complete करना है, तो सबसे पहले construction planning आता है. तो मैंने आपको बताया वो planning means वो management वाला activity है. So सबसे पहले आप जो आउटकम है, जो प्लानिंग स्टार्ट होती है, वो सबसे पहले स्टार्ट होती है आउटपुट से. रिजल्ट मीन्स आउटपुट, आउटपुट मीन्स डिलीवरेबल या ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट यू वांट टू गेट. यहाँ पे उसने फैसिलिटी डिज़ाइन बोल दिया, एक एग्जांपल ले लिया, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. सो वी नीड टू बेसिकली रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ वी हैव टू सी, वी नीड टू एनालाइज दीज एक्टिविटीज़ एंड वी नीड टू फाइंड आउट द अल्टरनेट, and then we need to move forward backward. So सबसे पहले you keep objective in the mind, what you want to make, I want to make this, and thing will be seen first. I want to construct a project, let us say
this is my project, I want to make a building, that is a project. Now I keep that project in my mind and then I plan backward. इसको कंप्लीट करना है, कितना टाइम में कंप्लीट करना है, 6 मंथ्स में, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं डिटेल में, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए. सो आई विल प्लान बैकवर्ड, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग बैकवर्ड. सो primary emphasis will be on cost control or schedule cost. These are the two things. Either you focus on the cost or you focus on the schedule, cost control or schedule control. So projects are primarily divided into different categories, expenditure categories, and either you have to focus more on the cost, which is further of two types, direct and indirect cost. एक वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का है HPCL से रिलेटेड, उसको जरूर देखना. कॉस्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. यू जस्ट अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज. सो प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉस्ट कंपोनेंट्स और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू शेड्यूल टाइमिंग्स. तो जैसे PERT एंड CPM आप करते हो, वो बेसिकली शेड्यूल रिलेटेड है, कितना टाइमिंग्स लगेगा किस चीज़ के लिए, वो आपका शेड्यूल्स रिलेटेड है. एंड शेड्यूल में प्रेसिडेंस होता है. PERT CPM, थिंक ऑफ PERT एंड CPM, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज. सो विच एक्टिविटी इज टू बी स्टार्टेड, प्रोजेक्ट इज टू बी स्टार्टेड विद विच एक्टिविटी. पहला एक्टिविटी कौन सा होगा, फिर दूसरा एक्टिविटी कौन सा होगा, पैरेलल एक्टिविटी कौन सा होगा, कितना टाइम उसको लगेगा, क्रिटिकल पाथ क्या होगा. तो सारी की सारी चीज़ हम उसमें डिस्कस करते हैं. So that is to be discussed, and critical path scheduling is to be done. So both cost and scheduling is done in detail for all this. Now this is what is diagram wise, this is how it is explained. Construction planning can be cost focused, it can be schedule focused. Schedule, PERT and CPM जो आप करते हो, जैसे सीक्वेंसिंग बनाते हो, सीक्वेंसिंग बनाते हो अलग अलग एक्टिविटीज़ का, तो ये PERT एंड CPM आप यहाँ पे पढ़ते हो. एंड यहाँ पे आप कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो आप इसमें पढ़ते हो. तो कॉस्ट बेसिस पे भी हो सकता है, शेड्यूल बेसिस पे भी हो सकता है. सो यू मेक द कंस्ट्रक्शन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दिस. एंड PERT CPM में यू राइट ऑल द एक्टिविटीज़, स्टार्टिंग नोड, फिर स्टार्टिंग एक्टिविटीज़, फिर दूसरी एक्टिविटीज़, उसके बाद फिर ऐसे आपका जो नेटवर्क डायग्राम है दैट कीप्स ऑन फ्लोइंग. तो PERT एंड CPM में आपने अलग से किया होगा. ये समझ लो कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर इस तरीके से आप दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सो क्रिटिकल पाथ, जॉब शॉप, शेड्यूल. तो ये आपका अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट को करते हैं. नाउ फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की क्या है, व्हाट डू वी नीड इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग. We need to see how much money is required. We need to divide entire work into different categories. तो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लेंगे. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक है, दिस इज क्लोजली लिंक्ड विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इसमें बहुत सी टर्म्स आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आएंगी. अगर वो टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, देन दिस टॉपिक कैन बी इजीली डन. तो व्हेन यू डिवाइड एंटायर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, that helps you to make the budgeting properly and to find out the exact time required to complete the project. So work breakdown structure is basically that kind of thing. So study work breakdown structure and you will understand that. So what are the various technologies required, what are the various this work breakdown structures, budgeting required, तो equipment क्या चाहिए हमें, कितना कॉस्ट लगेगा, किस तरीके से हमें उसको करना है. सो दैट एवरीथिंग इज द कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, राइट. सो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग is not restricted by particular time period, though you find out it make it for particular duration. ये पूरे का पूरा फैसिलिटी डिज़ाइन करने से रिलेटेड एक एक्टिविटी है तुम्हारा, पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग. तो हमें पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और उसमें अगर रीप्लानिंग करनी पड़े तो वो भी हम करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वेन एवर यू मेक प्लानिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन, यू मेक द बजट, यू मेक द टाइम टेबल, बट यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई दीज टू. आप बजट भी बनाते हो 2 लाख में कंप्लीट होना चाहिए, आप टाइम भी बनाते हो 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए. बट अगर आपको ये दोनों चेंज करना पड़े, रीप्लान करना पड़े, तो करते हो आप.
Maybe the time will not be 2 months, it will take more than 2 months. Maybe the budget may not be 2 lakh, it may be more than 2 lakh, or it can be less also. So budget and time you decide in the beginning, but then both are, you have to change, both can be changed, both should be changed. Now what is construction planning? Construction planning is the process to identify what are the steps required to make a structure. क्या क्या steps हैं? What is to be done? What is the timetable? How many people are required? What are the materials and equipments required? Project is to be completed within budget on proper schedule. So this is all about construction planning. These all things are done in the construction planning. तो basically construction planning, construction अगर एक project है तो construction planning is a project management. आपने पहले भी project management as a topic पढ़ा हुआ है, तो इसको अगर मेरे को link करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अलग अलग स्टेजेस फेजेस होते हैं. मेरे 2 लेक्चर हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. उसमें व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें जो पहला फेज है वो है इनिशिएशन या आइडिएशन एंड द सेकंड इज प्लानिंग. तो वो वाला जो प्लानिंग फेज है, दैट प्लानिंग फेज इज नॉट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग. कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज एंटायर यू कैन से द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट एक्चुअली, जिसमें आप प्लानिंग भी करते हैं और आप बाकी चीज़ें एग्जीक्यूशन वगैरह तक आगे तक जाते हो उसमें, राइट. सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आप ये डॉक्यूमेंट लेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ना है. टर्मिनोलॉजीज क्या है? कंस्ट्रक्शन बिडिंग क्या है? प्रपोजल को सबमिट करना प्रोजेक्ट के. जैसे आप कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्लाइंट मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग यू द प्रोजेक्ट. द क्लाइंट इज कस्टमर हु इज गिविंग यू द प्रोजेक्ट. And construction bid nothing but cost estimation of the project. He will say कितने पैसे में आप इसको complete करोगे, what is your cost for this project, in how much cost will you complete it, तो उसको बोलते हैं bidding. Baseline is reference. जैसे आप potential energy निकालते हो तो आप एक baseline लेते हो, एक reference लेते हो, उस reference से निकालते हो. Baseline is something like that. So baseline is a basically reference with respect to which आप performance को measure करते हो. तो आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे आप जानते हो देयर इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, देयर इज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, राइट. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मींस बेस लाइन बिल्कुल स्क्रैच है, क्लीन स्लेट, आपने वहां प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का बेस लाइन एंड ब्राउन फील्ड ऑलरेडी देयर इज अ कंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू स्टार्ट नॉट फ्रॉम स्क्रैच. तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट बेस लाइन्स. बेस लाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. So what are the basically steps to be taken and what is to be done if the project does not meet the its a timeline or it deviates from its course. Then blueprint drawings and specifications, drawings that show the layout of the finished project. So drawing is nothing but final project कैसा दिखेगा. Blueprint drawing specification, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर नीडेड टू बिल्ड द स्ट्रक्चर. तो आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा? ब्लूप्रिंट मतलब मेरे को दिखाओ कैसा प्रोजेक्ट आएगा, और ब्लूप्रिंट के अंदर सारा डिटेल होता है. सो ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट एंटायर प्रोजेक्ट विजुअलाइजेशन विद डिटेल स्पेसिफिकेशन, राइट. सो कॉन्ट्रैक्टर जो सबमिट करता है डॉक्यूमेंट आर्किटेक्ट को, दैट इज कॉल्ड सबमिटल्स. सो इट रिक्वायर्स द इक्विपमेंट, मटेरियल, ड्राइंग, सो वो सारे के सारा सबमिटल्स. स्कोप डॉक्यूमेंटेशन, फीडबैक फ्रॉम द की स्टेक होल्डर्स, शॉर्ट फाइनेंशियल टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट, डेडलाइंस, डिलीवरेबल्स, गोल्स, स्पेसिफिक टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट. तो स्कोप डॉक्यूमेंटेशन होता है वो जो की स्टेक होल्डर है, मतलब क्लाइंट है या बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में, उन सारे की स्टेक होल्डर्स का फीडबैक होता है कि आप इस प्रोजेक्ट से क्या अटेन करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू गेट from this particular project. That is a scope documentation. Now construction project planning कितने तरह की होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इसमें हैं. जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग किसको बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग किसको बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो देयर आर सेवरल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड्स and some names we should know. Strategic planning, right? Strategic planning is the master construction delivery plan, जिसमें
you tell in detail about the entire thing. तो अपने कस्टमर को आप सारा बताते हो, दिस इज हाउ यू आर प्लानिंग टू कंप्लीट इट, मास्टर प्लान. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेयर मीन्स द एंटायर मास्टर प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हो. सो दिस इज द मास्टर कंस्ट्रक्शन डिलीवरी प्लान विद पर्टिकुलर गाइडलाइंस. ऑपरेशनल प्लानिंग इज अ स्मॉलर पार्ट. और जब स्ट्रेटेजिक प्लान एक बार अप्रूव हो जाता है, हु अप्रूव्स द स्ट्रेटेजिक प्लान? क्लाइंट, द कस्टमर. कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट देता है, फिर आप अपनी डिटेल प्लान बनाते हो और उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं. वंस दैट स्ट्रेटेजिक प्लान इज एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट, देन you will be coming out with the operational plan. And operational plan is like a small component of that. Project is very big, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट को कंप्लीट करने के लिए then small operational planning is done. Then business planning, it is a draft of how this entire thing you will be doing. कौन सा काम किसको देना है, प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो देना है क्लाइंट को साइन करना है, ये बिजनेस प्लान होता है. इसके अंदर क्योंकि बिजनेस प्लान लिख रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉस्ट कंपोनेंट भी होता है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज कि हाउ वी वांट टू डू इट. ऑपरेशनल प्लान मीन्स पर्टिकुलर पार्ट हाउ वी हैव टू डू इट. बिजनेस प्लान मीन्स पैसा कितना खर्चा होगा, कैसे हम कितना पैसा उसको लगेगा, किस तरीके से लगेगा, रिसोर्स कैसे यूज होगा. रिसोर्स प्लानिंग मीन्स व्हाट ह्यूमन पावर, different kind of resources will be consumed, man, material, machine, all these requirements वो कितने यूज होंगी, that is a resource planning. So resource planning talks about resources, business planning talks about the finance or money, operational planning particular operation, strategic planning या detail planning. ये सारी की सारी हम इसकी बात करते हैं. कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन प्लान के अंदर, what are the various steps involved? First step is project initiation document in which you identify the key resource. So अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट क्या है, सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट इज द इनिशियल लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, द पीपल, मटेरियल, बजट. प्रोजेक्ट तभी इनिशिएट होगा अगर आपके पास ये सब कुछ है. इफ यू हैव बजट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, इफ यू हैव मटेरियल, यू हैव मैन पावर, देन ओनली प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड. सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो डॉक्यूमेंट है, दैट बेसिकली इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट द प्रोसेस, टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है, सो दैट इज द बेसिकली प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट. राइट. सो एवरीवन शुड नो व्हाट देयर टास्क इज, व्हाट देयर वर्क इज. और किस चीज पे फोकस करता है ये, रिसोर्सेज के ऊपर, बजट के ऊपर, सब के ऊपर ये फोकस करता है. सो हाउ टू ड्राफ्ट इनिशियल प्लान, हाउ टू मेक द इनिशियल प्लान. देन यू फिक्स अप द ऑब्जेक्टिव्स. आपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया और देन यू मेक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव. स्मार्ट में एस मीन्स ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक. स्मार्ट गोल मीन्स व्हाट? एस, योर ऑब्जेक्टिव गोल शुड बी स्पेसिफिक, वेल डिफाइंड, मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सके, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड. तो आपने जो प्रोजेक्ट करना है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव या आउटकम्स या डिलीवरेबल्स शुड बी स्मार्ट. इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक होनी चाहिए और आपकी मेजरेबल, जिसको मेजर कर सकें, और वो सारी की सारी होनी चाहिए. फिर आप ये इनिशियल प्लान का ड्राफ्ट बनाते हो, इसको ध्यान में रखते हुए. ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, वेरी वेरी सिंपल टर्म्स टू अंडरस्टैंड. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक मीन्स डेडलाइंस, माइलस्टोन्स आपको पता हो कि कब क्या अचीव करना है तुम्हें. मेजरेबल, आप उसको मेजर कर पाएं. अवेलेबल, अचीवेबल, सॉरी, आपकी डेडलाइंस, गोल्स की अचीव हो सकें. रेलिवेंट हो ऑब्जेक्टिव, टाइम बाउंड हो. So this is a small questions you can do. Then meet with key stakeholder. तो आपको अब आपने ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफाइन कर दिए, अब जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करो.
और उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनको बताओ व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड हाउ यू वांट टू प्रोसीड फॉरवर्ड। असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है अलग अलग लोगों को, जो आपका रिसोर्स है, टीम मेंबर हैं, अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो। तो हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, व्हाट शुड बी द स्टेजेस, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, एडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड यूजर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन करनी है। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, राइट। देन कम्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, आपको जो परफॉर्मेंस उसको ट्रैक करना है, क्या परफॉर्मेंस है प्रोजेक्ट, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं और उसको आपको ट्रैक करना है, एक्यूरेटली ट्रैकिंग करनी है आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, परफॉर्मेंस जो तुम्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आ रही है कि नहीं, क्वालिटी आ रही है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर यू मीटिंग, परफॉर्मेंस when you see whether your team is working or not, and quality is met, you are meeting the quality or not. So quality क्या होती है and performance आपने क्या पैरामीटर रखे हैं, वो accordingly you have to check it out. तो ये है कि आप साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। दिस ऑल इज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एंड लास्ट में इज अ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इज डन एट द लास्ट। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है तो आप उसको एक बार पूरे के पूरे को एनालिसिस करो, सो दैट नेक्स्ट प्रोजेक्ट व्हेन यू स्टार्ट योर टीम मेक्स इट्स एनालिसिस, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ, व्हाट वाज द वीकनेस, सो दैट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल। फाइनल प्रोजेक्ट बजट इज प्रिपेयर्ड सो दैट यू नो कि आपका खर्चा कितना आया। मे बी आपने जो प्लान किया था खर्चा उससे ज़्यादा आया, उससे कम आया, तो फाइनल रिव्यू मीटिंग, फाइनल असेसमेंट इज डन सो दैट द ऑल लर्निंग्स, जो भी आपने प्रोजेक्ट में लर्निंग की, वो अगले प्रोजेक्ट में आपको हेल्पफुल हों। दैट इज हाउ दिस इवेल्युएशन इज डन। सो व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेजेस फ्रेंड्स? नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स और स्टेजेस? So what are the various stages or steps in ascending order for steps involved in development of construction? So initiation, project initiation document, then draft plan, and then meet key stakeholders, track the performance, evaluation, these things are to be done. Construction equipment can be heavy machinery, earth mover, construction vehicle, construction equipment. आप जानते हैं construction के ऊपर, construction site के ऊपर जो equipment use होते हैं, so they can be categorized into these categories. 5 equipment systems: implement, traction, structure, powertrain, control, information. These are the 5 categories in which you can divide the construction equipment. तो अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आप है, वो इन 5 कैटेगरीज में आएगा। So heavy equipment basically provides the mechanical advantage, right? Mechanical advantage means the kind of multiplier effect which you get due to the force. जैसे आप कम फोर्स लगाओ और आपको ज़्यादा उसका आउटपुट मिले, that is called mechanical advantage. और heavy equipment उसी के लिए यूज होते हैं। सो वेन एवर देयर इज अ हैवी इक्विपमेंट, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, तो आपको मैन पावर रिक्वायर्ड इज लेस। वाई? बिकॉज हैवी इक्विपमेंट गिव्स यू लॉट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, कि जो आप मस्कुलर एनर्जी से काम कर सकते हैं वो मशीन करती है, दैट इज अ मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत से लोग किसी चीज़ को उठाने में लगे हैं, मे बी मशीन उसको बड़ी आसानी से उठा देगी, तो आपको उसको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। सो दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द हैवी मशीनरी। Now, how do you choose the equipment technology for construction? Appropriate technology and appropriate method is very important for construction. And जैसे पंप यूज करना है या ट्रांसपोर्ट आपको यूज करना है फॉर पंप यूज करना है और ट्रांसपोर्ट करना है कंक्रीट इन द बकेट, दैट इज इंपॉर्टेंट डिसीजन।
तो वाई डू यू वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? As like you have to carry the concrete in the bucket, or you want to use some pump for that. ये एक डिसीजन है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन है. Two alternates in any kind of construction project, you will get a couple of alternatives, different alternatives you will get in construction work, construction project. You can use alternate A, B, C. Now कौन सा alternate use करना है, that depends upon many factors, cost, time, so many factors. Any two alternatives, it will depend upon the relatively cost, reliability, availability of equipment, etc. Right, so this is how it is to be done. And whenever you have to choose a particular alternative, so you need to take a full plan in the view. कॉस्ट, टाइम, रिलायबिलिटी, इम्पैक्ट, इन सब का आपको करना पड़ता है वट एवर अल्टरनेटिव यू विल चूज. सो कितना रिलायबल होगा कोई अल्टरनेटिव, दैट ऑल्सो इज टू बी सीन. कॉस्ट और टाइम तो होता ही है. और जब आप बिडिंग करते हो तो ये अल्टरनेटिव्स को वहां पे शो करते हो. नो व्हाट इज वैल्यू इंजीनियरिंग फॉर अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मेथड? आपका जो क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा, वो आपसे अल्टरनेटिव पूछेगा. What can be the other options? What can be the other alternatives? And you have to give him alternatives. That is called value engineering. That what is the value I am getting for particular input. So the value engineering is a value assessment is this only. आप alternate दो और वो bidding में तुम्हें देने पड़ते हैं कि what are the various alternatives you are providing to the customer so that he choose the best option. And the constructor will make different plans for maybe different alternatives and different construction method he may choose. So obviously this alternate choosing is a very important part of your this entire process. And now we come to equipment selection. How do you choose the equipment? That depends upon a couple of factors. Equipment selection for particular job depends upon a couple of factors. So which equipment I am to take for which job, that will depend. Equipment का productivity, what is the production rate, features and attachments, supplier support, cost. So जो मैं equipment construction equipment use करने वाला हूँ, वो इन 4 factors के ऊपर depend करता है. उसकी productivity कितनी है, बड़ा equipment होगा, heavy machine होगी, productivity ज़्यादा होगी but cost भी ज़्यादा होगी, तो cost also is to be seen. What are the various features I am getting for particular product जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड सप्लायर सपोर्ट, जिसने वो मशीन दी है वो मेरे को आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो हाउ शैल यू चूज द दैट इक्विपमेंट. प्रोडक्टिविटी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली प्रोडक्शन और क्वान्टिटी. So we need to take the optimum size so that the cost is minimum. तो अगर आपसे पूछे कि how do you choose the construction equipment, what should be the size, आप बोलेंगे size should be optimum. Now what is the meaning of optimum? You will say minimum cost per unit production. तो जो भी तुम प्रोडक्शन कर रहे हो या जो भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है वो सबसे लीस्ट कॉस्ट के ऊपर अगर मेरे को मिल जाए तो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. That is called equipment productivity. There is a primary usage, there is a secondary usage. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक प्राइमरी यूज होता है, एक सेकेंडरी यूज होता है. आपने वो मशीन देखी होगी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो एक मशीन यूज होती है फॉर डिगिंग, इट इज यूज फॉर ब्रेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल. उसके मल्टीपल यूज होते हैं. एक प्राइमरी यूज भी होता है उसका. प्राइमरी यूज होता है उसका वो डिगिंग करना. सेकेंडरी यूज क्लीनिंग करना, ट्रिमिंग करना, सेकेंडरी यूज. तो प्राइमरी यूज इज द मेन थिंग. सेकेंडरी यूज हम उसको उस टाइम पे कंसीडर नहीं करते. जैसे ये ट्रैक्टर है क्रॉलर, प्राइमरी यूज बुलडोजिंग है इसका, लेकिन लैंड क्लियर करना, पुश लोडिंग करना, ये इसका सेकेंडरी पर्पस है. जब आप साइज डिसाइड करें तो प्राइमरी यूसेज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सिलेक्ट द साइज. तो द मेन जो पर्पस है वो है प्राइमरी यूसेज. प्राइमरी यूसेज इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट द साइज ऑफ द
इक्विपमेंट। ऑपरेटर्स के जो वेजेस हैं वो भी एक फैक्टर है। इक्विपमेंट साइज जब तुम चूज करते हो तो ऑपरेटर के वेजेस आर आल्सो फैक्टर। कॉस्ट ऑफ मूविंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज वेरी हाई, ऑपरेटर वेजेस आर लेस जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो व्हाट हैपेंस इज, सपोज यू चूज द हैवी इक्विपमेंट, आपने बड़े साइज के इक्विपमेंट चूज कर लिया, देन द पर्सन हु इज हैंडलिंग दैट इक्विपमेंट, उसके वेजेस विल बी मोर, ही विल बी मोर स्किल्ड, बट his salary comparatively will not be that much as the production rate will be more or the cost of equipment will be more. तो suppose you are taking a heavy tractor, not a small tractor, तो driver, wage of driver on heavy tractor and small tractor will be almost same, ज़्यादा difference नहीं आएगा, दो difference आएगा, but cost of heavy tractor and small tractor will be different and जो production rate है वो भी दोनों का different होगा। तो whenever you choose the equipment for construction, तो कई फैक्टर आते हैं, जैसे वेज भी एक फैक्टर होता है, जो उसको यूज कर रहा है उसका वेजेस। अनदर फैक्टर्स आर बेसिकली द योर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, एंड द थर्ड फैक्टर इज प्रोडक्शन रेट। तो दीज आर द फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर। उसमें ऑपरेटर के वेजेस एक फैक्टर है लेकिन मेन फैक्टर नहीं है। So then there are construction equipment has a lot of features, attachments that also to be seen. So equipment productivity can be increased in many ways by choosing the right equipment with the right attachments. That is one of the ways. So as you increase these features and attachments, so you can get better productivity, broad applications, better safety, improved convenience, those things can be there. Right equipment with right attachment, reducing the equipment downtime, adding special attachments, these are some of the ways to increase the equipment productivity. So this kind of question can be made from this. Yes, whenever we choose which equipment is to be purchased, so supplier support is also very, very important. So after sale service, do I get, what kind of after sale service do I get? Can my people be trained? Suppose I purchase this equipment, spare parts can I get, service facility I can get, training can I get or not? These all are also important factor. Right? So these all are to be seen, and then the cost. This is also very, very important factor, और उसमें resale value should also be seen. In the cost, resale value should also be seen. Right? So question can be framed. Size of the equipment actually decided on the basis of the primary usage, not the secondary usage. It is only on the basis of primary usage. There is something which is called precedence for site preparation and foundation work. Precedence means how do you choose a particular site and what is to be done at the site, how to prepare the site for the कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है। पर सीपीएम किस तरीके से बनता है, सपोज आई एम टू मेक माय प्रोजेक्ट एट पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर साइट, तो उस साइट को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए मेरे को कौन कौन से स्टेप्स को कैसे ऑर्डर में लगाना है, क्या क्या हमारे पास एक्टिविटीज दे रखी हैं। साइट क्लियरिंग, हटाना, रिमूव द ट्री, जर्नल एक्सकावेशन, ग्रेडिंग जर्नल एरिया, एक्सकावेशन ऑफ यूटिलिटी ट्रेंचेस। ये एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो हमें साइट प्रिपरेशन करनी है उसकी एक्टिविटीज दे रखी हैं। अब साइट क्लियरिंग एंड कटिंग ट्री कैन बी द इनिशियल प्रोसेसेस। सबसे शुरू में हम क्या कर सकते हैं, हम साइट को क्लियर करना और ट्रीज को रिमूव करना कैन बी द इनिशियल एक्टिविटीज इन द नेटवर्क डायग्राम। जर्नल एक्सकवेशन एंड जर्नल ग्रेडिंग are basically done only after site clearing is done.
खुदाई तभी करोगे ना कि साइट को क्लियर कर लोगे, साइट क्लियर नहीं है तो खुदाई कैसे करोगे, राइट। ये हो सकता है दैट एक्सकावेशन तब तक ना की जाए जब तक ट्रीज नहीं रिमूव किए जाते। सो ट्री रिमूवल कैन बी द एक्टिविटी टू जर्नल एक्सकावेशन एंड जर्नल ग्रेडिंग। तो बी भी उससे पहले करना जरूरी है। ट्री रिमूवल इज इंपॉर्टेंट, राइट। साइड क्लियरिंग तो है ही, बट बी भी हमारा ट्री रिमूवल भी उससे पहले होना चाहिए। अगेन नाउ ई एंड एफ कैन नॉट स्टार्ट टिल कंप्लीशन ऑफ जर्नल एक्सकावेशन। सो इस तरीके से सारी प्रोसेसेस विल फ्लो। इफ यू रीड दिस यू विल अंडरस्टैंड कौन सी एक्टिविटी पहले होनी, कौन सी बाद में होनी है। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? साइड क्लियरिंग, रिमूवल ऑफ ट्री आर द इनिशियल एक्टिविटीज, इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। जर्नल एक्सकवेशन से पहले साइड क्लियर हो जानी चाहिए, ग्रेडिंग से पहले साइड क्लियर हो जानी चाहिए, एक्सकवेशन फॉर यूटिलिटी ट्रेंचेस से पहले आपका रिमूवल ऑफ ट्री एंड जर्नल एक्सकवेशन हो जाना चाहिए, एंड देन दिस इज हाउ यू कीप ऑन। कंक्रीट कब डालना है? लास्ट में। तो ये उसका एक नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। सो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर नेटवर्क डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद यू। सो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट है 14 पेज का, दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड इक्विपमेंट, हाउ डू वी हैंडल दीज थिंग्स। इसके ऊपर थोड़ा सा एक ये था बेसिकली स्मॉल लेक्चर, एंड आई एम श्योर यू विल गेट एन आइडिया ऑन द बेस ऑफ दिस। इसके सारे लेक्चर कंप्लीट करके जाना इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल। जब आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, देन आई थिंक यू विल बी इन द पोजीशन, बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर यू नो other professional backgrounds people also, like mechanical engineers if they're joining the organization like HPCL. नेक्स्ट क्लास में हम साइट इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हाउ दिस ऑल इज डन। आप इसके टॉपिक्स को पढ़ते रहें, इसका एक कॉमन सेंस अगर आपका डेवलप हो गया, देन सिंपल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड आई एम वेरी श्योर आप उसका आंसर लगा सकते हैं। बट टेक द डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग स्लोली अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक यू।